Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Captain. In today's video, we will be discussing about the complete syllabus and what things we have to study if you are preparing for CUET 2026 and if you are preparing for the GATE and so other examinations because syllabus will be little bit different but mostly it will be same. Alright, so my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. We'll start this video with a very beautiful note that I have like introduced my new course which has already started and by the time ये वीडियो आप लोग देख रहे होगे probably उसकी classes start हो चुकी होंगी. Alright, so this is a Mahayoga special series batch in which you will be getting access to everything, like literally to everything. What you will be getting? You will be getting live classes and if in any case आपसे वो live classes मिस हो जाती हैं तो वो सारी की सारी classes आपको recording format में भी मिलेंगी. And this foundation course will start from the topic of what is science, what is psychology, why psychology is a science. And यहाँ से लेके I'll make sure कि आप proper उस level तक पहुंचो जहाँ पे आप हर एक question CVT, GATE, जामिया, क्राइस्ट, NFSU हर एक एग्जाम में you can boost your marks. Alright? Other than this, you will be getting interactive PPTs, notes. So मेरे notes के अलावा आपको और कोई ऐसा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, right? There will be some books I'll be telling you in the batch जो कि आप रेफरेंस के लिए पढ़ सकते हो, but other than मेरे notes आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा you will be having access to more than 10,000 MCQs. Yes, you heard me right. There will be more than 10,000 MCQs I'll provide you in the form of PYQs, in the form of some MCQ books, PDFs, and again, you will be having a 15 mock test series. Alright, इसके solutions आपको दिए जाएंगे, answers दिए जाएंगे, and ये 15 mock tests आपके होंगे. Everything is inclusive. But what's new this year? The new thing this year will be if you are purchasing this course right now, which has a price of currently 5,000 rupees, right? It will be 4,999 plus some GST. For the 5,000 rupees, you will be having access to this batch, will be like which will be of somewhere around 2.5 months, right? But what after now? इसके बाद आप लोग की लाइव क्लासेस की आदत छूट जाएगी, डिसिप्लिन छूट जाएगा, राइट? वो एक जो रेगुलरिटी बनी रहती थी वो छूट जाएगी, बट नॉट एनी मोर. बिकॉज इफ यू आर बाइंग दिस बैच फॉर द 5,000 रुपीज आपको कंप्लीट एग्जाम तक हर एक बैच का एक्सेस दिया जाएगा, विच मीन्स यू विल बी हैविंग एक्सेस टू दिस बैच एंड आफ्टर दिस बैच माई सेकेंड फाउंडेशन बैच विल ऑल्सो बी देयर, बट उसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है. उसमें एक्सेस आप लोग को कंप्लीटली फ्री हो जाएगा. इसका मतलब कि आप ये 2-2.5 महीने मेरे साथ पढ़ोगे और उसके बाद फिर से जीरो से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा लाइव क्लासेस के थ्रू मुझसे डिस्कस करते हुए. एंड देन उसके बाद एज यू नो लास्ट ईयर मैंने एक स्पेशल एमसीक्यू सीरीज बैच लॉन्च किया था जिसका नाम था विजेता एमसीक्यू बूस्टर बैच एंड द रिस्पॉन्स वॉज ट्रेमेंडस. आई मीन ऑनेस्टली आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस मच रिस्पॉन्स. उस बैच की प्राइस होती है 2,000 रुपीज एंड जो अगला फाउंडेशन बैच आएगा उसकी प्राइस होगी ऑलमोस्ट अराउंड 4,000 रुपीज. सो फॉर द 5,000 रुपीज you will be having benefits of somewhere around 11,000 rupees. Alright, so again if you'll buy this course which is Mahayoga batch आपको किसी और कोर्स में एनरोल होने की जरूरत नहीं है. You will be getting everything for this price. Alright, so like इस बैच को like ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? You have to download the Study Capital app and वहाँ पे आप सर्च करेंगे CVT Study Capital. वहाँ पे आपको मेरे बैचेस दिख जाएंगे पीजी सेक्शंस में and there you can register it. Alright, हमारी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं by the time you are watching this video and also there will be many more surprises on the YouTube, so stay tuned. Let's start with the video. This was the important information which I wanted to share. So this is the official syllabus for 2025. Alright, we assume कि अगर कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है तो इस बार भी सिलेबस वैसा ही रहेगा, राइट? Again, this is my philosophy. The things which have not been changed for so many years, there is a very less chance कि वो इस बार चेंज हो जाए, राइट? तो हम ये मान के चलेंगे कि इस बार पेपर का फॉर्मेट और जो सिलेबस है वो वैसा ही रहने वाला है. सो बाय द टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो देयर हैज बीन नो चेंज. अगर फर्दर कोई भी चेंज आता है तो इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी
कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, आई टेल यू। आपका जो पेपर होगा दैट कोड इज HUQP 20। ये आपका साइकोलॉजी का कोड है CUET के लिए। इसमें देयर विल बी ओनली एंड ओनली 75 क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो मेक श्योर कोई भी आपका सेक्शन ए, डोमेन, जनरल एबिलिटी, मैथ्स, रीजनिंग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ 75 साइकोलॉजी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ऑलराइट, हर क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे रहेंगे, विच मीन्स जो मैंने बताया कोई मैथ्स, कोई रीजनिंग, कुछ भी अननेसेसरी क्लटर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ये पॉइंट बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। राइट, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। नो, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी मींस दैट यू कैन अटेंड ऑल क्वेश्चंस। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ 75 आपको 60 करने हैं, आउट ऑफ 75 आपको 50 करने। नो, इफ यू नो द आंसर ऑफ 75 क्वेश्चंस, आपको 75 के 75 करने हैं, यानी कि सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना कंपलसरी है, कोई चॉइस नहीं है। आप कितने उसमें से कर पाते हो ये आपकी दिक्कत है। राइट, आपको 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको लाइक 25 क्वेश्चन आते हैं, यू know answers of 65 questions, 68 questions, it's up to you। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में चॉइसेस नहीं है, हर एक क्वेश्चन का नंबर काउंट होगा। अगर आप उसको नहीं अटेंड करोगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज होती है। -1 का आपका नेगेटिव मार्क होता है, +4 का आपका पॉजिटिव सीन होता है। राइट, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, एंड एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1 नंबर कट जाते हैं। ये सिंपल सी चीज होती है। ऑलराइट, पूरा पेपर कितने का होता है आपका? 300 मार्क्स। ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस अगर आप लोग देखोगे CUET की वेबसाइट जाते हैं, दे हैव मेंशन द क्यूटेस्ट सिलेबस। राइट, सिर्फ इतने टॉपिक्स देती हैं। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या स्किप करना है, लेट मी टेल यू। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, you will be studying schools of psychology: structuralism, functionalism, behaviorism, gestalt, psychodynamic, cognitive, humanistic, biological, right? For the each school of psychology, you can have so many books। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म पे कोई बुक्स रखी हुई है। राइट, स्ट्रक्चरलिज्म में भी विलियम वुंड का वॉलंटरिज्म, टिचनर का स्ट्रक्चरलिज्म एक्चुअली में, इन सब पे प्रॉपर बुक्स हैं। So how much you need to study, this will ensure by what? This will be ensured by PYQs। PYQs की लाइक में आपको सब कुछ पढ़ना है। सिंपल है, मैं हमेशा चीज बोलता हूँ that see things crystal clear। PYQs are your enemies, so if you want to know your future enemy, आपको अपने previous enemies के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? अब हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में भी देयर इज सो मच थिंग्स टू स्टडी। द पॉइंट इज लास्ट कुछ इयर्स में उन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पूछे हुए हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से। एज सच मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं, बट एज यू नो एनटीए इज एनटीए, हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मे बी 26 में वो 6-7 क्वेश्चन दे दें, है ना। अगेन आवर जॉब इज टू मेक यू प्रिपेयर फॉर एवरी वर्स्ट केस सिनेरियो। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में आपको हिपोक्रेट्स की थ्योरी, एरिस्टोटल, जॉन लॉक, हॉब्स की थ्योरी थोड़ी बहुत, देन प्लेटो का कंसेप्ट ऑफ सोल, ये सब चीजें इसमें आपको पढ़नी होती है। राइट, फिर आपका आता है बेसिकली इफ आई कैन जूम इन, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी इसी का पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी नथिंग, है ना, व्हाट इज साइकोलॉजी, यही है इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी, बहुत डीप नहीं है। मेन इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी में आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का अलग पार्ट आता है, विच इज लाइक 7 to 8 स्कूल्स, जिन हिसाब से मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन वी हैव बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। व्हाट डज दिस से? दिस इज बेसिकली the complete biological part, right? You will be studying brain, right? You will be studying endocrine system, you will be studying nervous system, you will be studying action potential, you will be studying neuron। ये सारी की सारी चीजें आप इसमें पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर दो स्टूडेंट्स हु एक्चुअली फियर बायोलॉजी, जिनको टर्म्स याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट डोंट वरी, आई विल मेक श्योर कि आपको सारी चीजें समझ आए अच्छे से। राइट, फिर आता है आपका लर्निंग इन मेमोरी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एनटीए। राइट, क्या करता है इसमें एनटीए? आपसे बेसिक बेसिक क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना, आपसे क्या पूछेगा वो? आपसे पूछेगा वो क्लासिकल कंडीशनिंग। देन इट विल आस्क यू ऑपरेंट कंडीशनिंग। लर्निंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पनिशमेंट, देन उसमें भी वेरिएबल रेशियो, वेरिएबल इंटरवल, फिक्स रेशियो, फिक्स इंटरवल। राइट, इसमें 2-3 और कंसेप्ट इस बार उन्होंने न्यू
एड्रेस किए हैं, इफ यू हैव सीन द जामिया पेपर, उन्होंने 2-3 क्वेश्चंस न्यू टॉपिक से पूछे थे जो आज से पहले नहीं पूछे थे। इट मीन्स कि हमें वो सारी चीजें पढ़नी है जो एनटीए पूछ चुका है, एंड अगेन वी हैव टू स्टडी सम एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कि नेट के एनालिसिस से आते हैं। सो एज यू नो, आई हैव क्वालिफाइड गेट आल्सो, आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ आल्सो, राइट। तो कहीं ना कहीं मैंने लास्ट 10 साल के यूजीसी नेट के भी पीवाईक्यूज के एनालिसिस कर रखी है, तो मेरे माइंड में रहता है, राइट, कि ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे अब तक नहीं पूछा गया है, एंड इफ दे विल आस्क दिस क्वेश्चन, तो वो किस लेवल का होगा, किस डेप्थ तक आपको पढ़ना है उसको, राइट। सो दिस इज द थिंग व्हिच आई शेयर इन माय मैचेस। देन आपका है सेंसेशन एंड परसेप्शन, ऑलराइट, सेंसेशन एंड परसेप्शन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, बेसिक्स है, इसमें टाइप्स ऑफ सेंसेस आपको पढ़ना है, आईज के बारे में पढ़ना है, नोज ईयर्स के बारे में पढ़ना है, सेंसरी एडेप्टेशन हो गया आपका, राइट, सेंसरी एडेप्टेशन, हैबिचुएशन। देन इसके बाद आपको कुछ थ्योरीज पढ़नी है, थ्योरी ऑफ विजन, देन थ्योरीज ऑफ पिच विच इज नथिंग बट साउंड, है ना, आपने सुना होगा मे बी वॉली प्रिंसिपल, राइट, आपने रदरफोर्ड का नाम सुना होगा, फ्रीक्वेंसी थ्योरी, प्लेस थ्योरी, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। परसेप्शन, इट इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, इसमें आपको ऑलमोस्ट 10 से 12 थ्योरीज पढ़नी है, राइट, टॉप डाउन प्रोसेसिंग, बॉटम अप प्रोसेसिंग, सब कुछ यहीं पे आएगा, राइट। Then emotion motivation, again one of the favorite topics. In emotion, you will be studying 4-5 theories such as James Lange theory, Cannon-Bart theory, Shatter-Singer theory, right? Lazarus cognitive appraisal, बहुत सारी ऐसी theories हैं. And don't worry, जो बच्चे साइकोलॉजी कभी नहीं पढ़े, who are from non psychology background, please don't worry, right? आप लोगों को इस तरह से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जिससे आपको कभी फील ही नहीं होगा कि आप साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के थे या नहीं थे, यू विल बी कंफ्यूज्ड, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, डोंट वरी, हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, एंड मेरी क्लासेस में भी मैं बाइलिंगुअल ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, चलिए। देन इंटेलिजेंस में यू हैव सो मेनी थ्योरीज, how shall I start? You have Kettle's theory, you have Spearman's theory, you have Ising's theory, then you have Gardner's theory, you have Guilford's theory, you have Sternberg's theory. There are so many theories, and they ask you very frequently from this topic. Okay, तो intelligence भी आपका बहुत ही one of the hot topics है. Then personality, again बहुत सारी theories हैं इसमें. Clear? सो पर्सनालिटीज में भी आपके पास बहुत सारी थ्योरीज हैं। देन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, एंड इफ यू कैन सी, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, राइट। सो इफ यू कैन सी, वी हैव टू टॉपिक्स हियर, राइट, वी हैव, जस्ट अ सेकेंड, we have two topics, you can see, one is psychological testing and one is statistics and psychology, right? हम इन टॉपिक्स को अलग अलग नहीं पढ़ते हैं, राइट। फर्स्टली मैं इसको अलग अलग नहीं पढ़ाता हूँ बिकॉज इट विल बी ऑफ नो यूज कि मैं आपको सारी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बता दूं, फिर मैं आपको बाद में बताऊं जाके कि ओके दिस इज मीन, इसे हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, याद करो मैंने वहां पढ़ाया था, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि मैंने वहां पे ऐसा पढ़ा था, नो। सो आई विल टीच यू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड स्टैटिस्टिक्स साइमल्टेनियसली, राइट। डोंट वरी, जिन भी बच्चों का मैथ्स का डर लगता है, रिसर्च का डर लगता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कैलकुलेशंस, आई विल मेक श्योर कि अगर आपको प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर और अंडर रूट, इतना अगर आपको आता है ना, इतना कैलकुलेट अगर आप कर लेते हो, तो इट इज माई प्रॉमिस ऑन दिस ओपन प्लेटफॉर्म कि मैं आपका स्टैटिस्टिक्स का डर दूर कर दूंगा, ऑलराइट। आपका जो रिसर्च और मैथ्स का डर है वो आई विल मेक श्योर कि वो चीज चली जाए, ठीक है, क्लियर, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। Then lifespan developmental psychology, Piaget, Kohlberg, Eric Erickson, Vygotsky, Ainsworth, Bowlby's, right, David Fiske, बहुत सारी थ्योरीज हैं इसमें, राइट। तो इसमें भी आपको काफी चीजें एक्सटेंसिवली कवर करनी पड़ेंगी, एंड अगेन इनकी बुक्स बहुत ज्यादा बल्कि होती हैं, सो थोड़ा सा आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर कि आप बहुत ज्यादा इंडल्ज ना हो जाए, ऐसा ना हो कि you are studying so much that you have deviated from what you need to actually study, है ना, इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें। देन एबनॉर्मल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी का पार्ट है, इसमें आपके डिसऑर्डर्स होंगे, थेरेपीज होंगी, देन सिम्टम्स होंगे, अगेन जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स वेलफेयर, लेट मी टेल यू, आपको किसी भी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया नहीं पढ़ना है। देयर आर सम डिसऑर्डर्स जिनका क्राइटेरिया एग्जाम में पूछा जाता है, बट दे आर जस्ट 2-3, है ना।
तो उनका क्राइटेरिया मैं आपको बता दूंगा अलग से। लेकिन ऐसा सच आपको एग्जाम में डीएसएन से क्राइटेरिया नहीं पढ़ना है, ओनली ऑन एंड ओनली सिम्टम्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप लोग मेक श्योर हैं। सो दिस वाज द सिलेबस। आई थिंक आप लोगों को चीजें कवर होंगी। ऑलराइट, एंड अगेन अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होगी आप लोग इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। आई बी हैप्पी टू आंसर। ठीक है, मैं आंसर करूंगा, मैं फ्रिक्वेंटली कमेंट्स देखता रहता हूँ। ठीक है, किसी भी चीज का आपको गाइडेंस चाहिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ऑलराइट, एंड अगेन I'll end this video for the last note that how this patch will help you, right? What are the perks? Again, I've repeated, but I'll make sure कि थोड़ी और चीजें crystal clear हो जाएं। In this patch, you will be getting a tailored guidance. It means कि अगर आप क्लास में चीज सही से नहीं समझ पा रहे हो तो हमारी टीम्स आपसे फ्रिक्वेंटली फीडबैक लेती रहेगी आपको क्या प्रॉब्लम है। एंड टीम्स तो सेकेंडरी आती है, मैं पर्सनली आपसे फीडबैक लेता रहूंगा कि आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट? एंड दिस कम्स टू our this point that you will be personally contacted with me. You will be personally in connection with me. आपके पास मेरा WhatsApp नंबर होगा, आप मेरे से WhatsApp एक्सेस पे रहोगे। अगर आपको कुछ ऐसा डाउट आता है विच आई थिंक कि ये कॉल पे बात करना चाहिए तो मैं आपसे कॉल पे भी बात करूंगा, राइट? तो आपको कहीं भी वाया वाया भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? जो भी आपकी क्यूरी होगी इमीडिएटली आप वर्किंग आवर्स में मुझे भेजोगे। आई मेक श्योर कि वो 2 से 3 घंटे में मैं आंसर करूँ, क्योंकि मैं फोन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज नहीं कर पाता हूँ, दैट्स माई लिमिटेशन, राइट? तो जैसे ही मैं क्वेरी आपको देखता हूँ मैं तुरंत आपसे पर्सनल कॉन्टैक्ट में मैं रहूंगा। अगेन यू विल बी हैविंग टेस्ट सीरीज एक्सेस एंड यू विल बी हैविंग इंटरैक्टिव पीपीटीज, नोट्स एंड अगेन 10,000 प्लस एमसीक्यूज। इमेजिन आपको 75 क्वेश्चंस करके आने हैं and I will make you practice more than 10,000 MCQs. Just imagine the level of preparation you will be having. Alright? So see you soon in the class. मेरे batches already start हो चुके हैं. You can join right now.